Everyone, good evening. Welcome again. This is not a planned session, but a very intriguing and relevant topic, which was shared on handle of Dr. Vishmaya. So basically, that led me to start this session and this session. Sorry. So basically, the title of that thread is stock crisis and framing of opinions and views. So everybody who's there in the market, who has spent time in the market, must have experienced this, and our behavior within the market is very important. At this point in time, the uncertainty which is linked to the election is the talk of the town, but I fail to understand whether the people across the board, or maybe those whosoever are attending, or maybe placing themselves. So, was there criteria of investing based on election alone? If yes, in that case, it is very valid that they should be considering this. But if the criteria basis which they have invested is entirely different, or maybe based on the fundamentals or technicals, whichever way one is comfortable with in their framework, in such cases, one should not be so much concerned. Obviously, if you have entered into something at a wrong time or wrong price, definitely there could be some trouble going forward. But we never invest with a, we never keep in our mind, we never invest so as to lose money, right? Our idea is wherever we are putting in money, that shall grow, right? So, long story short, if our investment horizon is 2, 3 years, so even if something untoward happens after the result of this election, things are not going to change, right? Of course, there would be materially a reaction which will happen post election, be it on the positive side or the negative side. So that would be there in place, right? If we put incremental cash, say tomorrow or maybe on Monday, and if the market crashes after the election result, then we'll be crying in hindsight that that was our worst decision, right? Contrary to which, if we do not invest and if the market becomes euphoric after the election result, there would be a regret that I should have put that money. So that is going to happen across the board, whatever the market situation is. So we should not be like investing basis events until unless we are very sure about anything, right? Or we have so much of experience that we have seen these kind of cycles, election cycles in the past. Then obviously one can take positions. But broadly, for a common retailer, this is not a best practice, right? And if something is invested based on your due diligence, or maybe you can say if you are subscribed to any good advisory services and you have invested basis that. So until unless the thesis or the fundamentals within the companies change, you should not be worried, right? And as I always say, when there is pain in the market, or when there is red in the market, at that point in time, the opportunities are better. So you can always add to your existing positions if they are available as a bargain going forward. So definitely this is one thing we should be very conscious of. Elections will come and they will go. The market will remain. What market doesn't like is the uncertainty. But again, your investment horizon is something which can very well deal with the uncertainty. So I was discussing about the thread shared by Dr. Vishmaya, right? So the title was Stock Crisis and Framing of Opinions and Views. So whenever any kind of crisis happens, right? So in any stock, the first reaction we often see in the market is there is brutal selling, or maybe if the event is positive, right? In that case, there would be everybody would be after that stock or company, right? But until and unless we find out the reason, right? Because the demand supply game, right? Be it on the selling side or the buying side,
If there is there are more number of sellers, you will see red in that particular counter. So basically, idea is we should be finding out the reason why this is happening. We have seen one example in the recent past, the Polycab, right? So there was a raid by the income tax department, and everybody was clueless what to do, and everybody was selling that counter right, left and center, right? And you can see after some point in time, the price of that counter has not just regained that point, but again, it has done well from there also. So the bigger picture is one need to quantify that the crisis or the so-called crisis which has been formed on the opinions of the market participants is real or not. So more on, it should be like rather than the quantitative analysis of these things, we should be more into qualitative analysis, right? We should be factoring in, and there is always a chance that you are invested in such situation in a particular counter and you have enough margin of safety. So that provides you the cushion so that you can sail through the short period of uncertainty, right? If some news comes at this point in time, so definitely it takes some time before we get a clarification, or you can say clarity on that thing. At max 1 or 2 days, I think that would be more than enough, right? Or if something is more or less very huge in the negative sense, then obviously things take time. But broadly, you get a fair sense in shorter period of time. So instead of reacting in a knee-jerk reaction, you should buy yourself some time to analyze. And the same was the case when the Hindenburg issue, had issued reports about the Adani stocks, right? So all the stocks in that particular group were hammered very badly, and after that, some point in time, the things clarified. And again, I'm not supporting that the companies are maybe good for buy or sell, but I'm just making a general comment. So the things recovered from there also, right? And same happened in the recent event wherein something of Hawala kind of thing was notified by the SEBI, right? So basically, it's not about naming the company. Of course, that thread has mentioned those names, and same is with the other companies. Even the company Dixon, right? It also had IT raids and ET cases in the past, but you can see from there also these companies have done well. So naming a company is immaterial. The broader idea is you need to quantify that whatever issue has been associated with any company. If it is a company of you can say, I mean, there is enough information available in the public forum, then definitely you can do your due diligence on that counter. And there are companies which belong to a segment wherein the information is limited. So until unless you have good access to the information, or maybe you can have access to the commentary of the management, it is always wise not to take such big positions that if things go wrong, then you'll be like clueless what to do, right? And we have we are in almost towards the end of the earning season, and we are seeing that the companies which are not delivering good result across the board, I won't say that any particular pocket they are beaten down, but across the board wherein the results are not coming as per the street expectations, the companies have been, I mean, brutally beaten down by the market. And of course, there are opportunities when good companies go through bad quarters. So definitely, such companies which are undergoing temporary pain
should be part of your watch list, or you can maybe, if you're liking the business, then definitely you can take some tracking position basis, which so it's very common, at least with me, not sure of others. So until unless you buy any company now, you won't be able to do diligence on that level, right? And there are very high chances that you have some good idea, you thought about it. So until unless it's part of your portfolio or watch list, you may miss out on the developments going on in the company. And again, when there are times of uncertainty, so the idea is to review your portfolio with a thought that anything which is, I mean, making you anxious or sleepless, so definitely you should review, or the least conviction ideas wherein you find the things are not developing as per the expectations. So definitely you can review those investments. But the investments which you had invested with a view of 2, 3, or maybe more years, and the things are uh, going fine as far as the management commentary or the visibility of growth in the company. So you should not be doing much with those companies. And obviously, all the quarters or throughout the year are not same for majority of the companies, and you also need to find out is there any angle of seasonality in the results of the companies. So such angles should also be explored, and definitely in the earnings time, you should be looking at the companies, that what kind of results are coming in, which kind of sectors or which pockets, subsectors you can say, right? So the idea is not that you study result of each and every company which is listed in the market, but the idea is you get a broad sense. Say if you have some company X from a sector, and you should also be looking for results in the same sector for the other companies, or which we can say the peers of that company, so that you will be able to say, if we specifically take, say, agrochemical, right? So that is a subsector, right? So if all the companies are showing certain traits, in the sense like they are showing that the things are not rosy and there are difficulties, be it with the raw material prices or demand in the maybe the domestic or export demand. So you can surely get a feel that if your portfolio company is experiencing similar reasons and the result is subdued, so definitely some more time can be allowed on those fronts. If you are a kind of person who believe in looking for companies wherein value is available and you can gauge growth going forward, right? So these are basic things, and see, market is never, decoupled from regret, right? So if you sell early, there would be regret. If you sell late, then again it comes regret. In hindsight, the ideas which you missed will also bring regret to you, and the ideas which you pick and didn't deliver will also bring regret. So that should not be given much of the bandwidth within your mind, because stress hardly help. Obviously, limited stress is good for the brain and body for sure, but too much of it will not serve any purpose, and rather it will be doing the other way around. And especially if you see ये 2-3 दिन जो मार्केट के अभी बचे हैं, तो there is a fair possibility कि जो स्मार्ट मनी बोलो या फिर आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स और the institutions which obviously have an edge when it comes to information, right? तो उनका बेसिकली क्या प्लेसमेंट रहता है, although it is very difficult for us retailers to find out until we have some concrete data, but what we can do is कि ऐसा नहीं है कि यार देखो 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट को वो करेक्ट करवाए, राइट? और
और रिजल्ट मान लो उसके बाद एक्सपेक्टेड नहीं आता तो फर्दर करेक्शन भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब वी कैन नॉट रूल आउट दैट। बट ऐसा ना हो कि आपको एक दो दिन के लिए वो डरा के या कुछ ऐसा सेलिंग आती है, उसमें आपने अच्छे बिजनेसेस जो आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिले हुए थे उसको आप बेच दो, और मार्केट इलेक्शन रिजल्ट के बाद रैली करे तो आप दोबारा उस प्राइस पॉइंट पे एंटर ना कर पाए, तो दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। हाँ, ये है कि आपके पास इफ यू हैव समथिंग इंक्रीमेंटल टू इन्वेस्ट तो उस पे आप कॉल ले सकते हो कि यू शुड अलाउ योर सेल्फ सम टाइम सो दैट द अनसर्टेनिटीज becomes a certainty once the results are declared, और उसके बाद जो भी मार्केट का डायरेक्शन रहता है तो उसी के बेसिस पे हम अपने आप को प्लेसमेंट कर सकते हैं। So let's see if there are any questions or anything to say from our audience. So one speaker we have, Kyan Cafe. Okay. Yeah, you have anything to say? He got dropped. Anyways, if there are any questions, the comment option is always open, and you can also send in a speaker request basis which we can interact. And those who are yet to connect to the Telegram channel, or you can say for updates, so definitely I would request to uh, all of you to have a look so that you can gauge what kind of information is being shared. So there is nothing to sell, only the updates about the spaces, results, and the anything under the sun which is related to market, right? So that is, I mean, done with the purpose of that it will become a repository of good information, और उसमें से जो किसी को यूजफुल होता है तो उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। तो इफ यू आर विलिंग तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट। उसके अलावा टेक्निकल बेसिस पे भी पीछे काफी बात हो रही थी, तो उसमें भी ऐसा कोई अलार्मिंग एज ऑन डेट कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेवल्स ब्रेक हो गए हैं। और बट अगेन जो इलेक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है उसमें ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट के नियर हैं तो वहां पे तो फिर मेक और ब्रेक होगा। तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि भाई उसमें मतलब इधर साइड कोई अच्छी मूवमेंट ना आए। एंड टाइम एंड अगेन इफ यू आर सीइंग न्यूज दीज डेज, बी इट द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, एंड इवन टुडे our finance minister also said ki the markets are very promising, and a stable government will provide the necessary boost for the next bull run. So hopefully those things may become reality. But again, we need to be cautious on the incremental cash, or maybe if you have, I mean, what I have seen that in the last 1 month, be it the fund managers or the investors, so they had some portion of cash in their portfolios, or maybe they came in cash. So definitely they were also jittery in the sense that they do not want to miss the opportunity that if there is something wrong in the market, so definitely there should be some cash to deploy in those times of pessimism. So let's see how it goes, and the benefit which the lower ticket size investors has in such situation is कि तो टिकट साइज छोटा होता है तो लूज करने को कम होता है, बट लर्न करने को बहुत होता है, राइट? सो वी आर नॉट इन इन दैट कैटेगरी की बहुत कुछ स्टेक पे है। और रिटेलर से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा आपको मार्केट में जो फैंसी या समथिंग विच इज द टॉक ऑफ द टाउन, और जिसके बारे में बहुत सारी बात हो रही है, एवरीबडी इज पुशिंग अबाउट समथिंग, तो उस टाइम तक सारी चीजें या तो प्राइस में डिस्काउंट हो जाती हैं या आपको कोई इंफॉर्मेशन एज नहीं है। तो उस केस में आप ब्लाइंड एंटर प्लीज मत कीजिए। हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम और मे बी उस प्राइस पॉइंट से भी कंपनीज काफी अच्छा कर जाती हैं,
बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये सिचुएशन जब टॉप बनते हैं उसके अराउंड होती हैं, तो आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग में देखिए, लगता है लोगों को, और आजकल खासकर सोशल मीडिया के जमाने में व्हेन पीपल आर पोस्टिंग क्रेजी पीएनएल्स और द प्रॉफिट they are making beats through investing or swing positional or whatever you can, maybe some also post about FNO, right? But the bigger thing is, once one is we are not sure whether the screenshots or the pics shared are original or not. That is number one. Even if they are original, whether we are capable enough to copy those person or maybe rely on those people, right? You never know. If say I am talking something, so at the back of the mind, it could be a fair possibility that I am biased about that investment, and there could be some hidden interest also, right? So I always say that you should be very cautious. Whatever being shared on the social media always have two sides to it, right? And we fairly assume that we do our due diligence in selecting the people we follow, right? But again, किसी के भी blindly आप 100% किसी को फेथ करके और अपना हार्ड अर्न मनी ब्लाइंडली किसी के पीछे ना लगाएं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आप वहां पे धोखा ही खाएंगे। हाँ, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, आप उसको पढ़ें या उसको समझें या उस पर अपनी फर्दर स्टार्टिंग पॉइंट लेके ड्यू डिलिजेंस करें, तो वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। एवरीबडी हैज समथिंग पॉजिटिव टू शेयर, लेकिन ब्लाइंडली किसी को कॉपी करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में बहुत डाइसी हो जाता है दैट the things can crazily go wrong, right? I've seen people who have made single investments of all the money they had, and they have gone zero. तो ऐसा मार्केट में कुछ ना करें कि आप मार्केट में जो बने रहने के लिए सबसे एसेंशियल है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो आपका पैसा है वही आपके पास ना रहे। हाँ ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पीपल से दैट देयर इज नो हार्म इन लर्निंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, दैट इज डेफिनेटली देयर। आप एक छोटे साइज से या बहुत 1-2% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप ये चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक 5 रुपए का या 10 रुपए का है, तो उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो 1000 रुपए जाएगा, तो ये आपके परसेप्शन टोटली रॉन्ग है। मैंने देखा है कि मेजोरिटी इस इंटेंशन से उसको बाय करते हैं कि चलो 10 रुपए का है, तो इवन इफ आई हैव से 10-20K, तो मेरे पास ठीक ठाक क्वांटिटी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मैथ्स वही होता है कि भाई जो आपके प्राइस पॉइंट से वो चीज कितनी बढ़ेगी या घटेगी, उसी के बेसिस पे आपका फायदा या नुकसान होना है। तो प्राइस इज वन थिंग, और डेफिनेटली जो कम प्राइस के शेयर्स या कंपनीज होती हैं वो ज्यादा रिटेल को या एटलीस्ट बिगनर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। और क्योंकि शुरू में कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा करें कि एक दो अच्छे आइडियाज आइडेंटिफाई करें, उन्हीं पे अपनी बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करें और उनमें इन्वेस्ट करें, रादर देन कि छोटा मोटा स्टेक आप हर कंपनी में ले लिया, कंपनी आपने 50 ले ली और उसमें इन्वेस्टमेंट पता करो तो किसी में 10,000 लगे हैं, किसी में 5,000 लगे हैं, किसी में 20,000 लगे हैं। मतलब दिस इज नॉट सेइंग टू डीमीन एनीवन, सबका अपना एक इनिशियल फेज होता है, कैपिटल लिमिटेड होती है, लेकिन आइडिया ये है कि भाई पैसा तभी बनेगा जब आप अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करके उसमें ठीक ठाक एलोकेशन करेंगे और उस पे जो सबसे मेन एलिमेंट टाइम का है उसको टाइम अलाउ करेंगे। तो आपका बिहेवियर ही डिफाइन करेगा कि आप मार्केट में आगे जाके पैसा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा पॉज करूंगा, वाजपेयी जी हमारे बीच में है, तो वाजपेयी सर आपका भी व्यू, एक तो मार्केट आउटलुक आप क्या देख रहे हैं, और दूसरा मार्केट बिहेवियर जिस पे मैं सोच रहा हूँ कि चर्चा करना बहुत उचित है, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है उस पर रिएक्ट पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं, जो कि राइट अप्रोच नहीं है।
हमेशा हमें एनालाइज करना चाहिए कि कोई चीज हमारे तक आई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ, हमारे रीजन फाइंड आउट करने के बाद हम उस डिसीजन पॉइंट पे आ जाने चाहिए कि भैया अब हमें क्या करना है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा, मान लो कोई किसी कंपनी को लेके सच में ही कुछ नेगेटिव है और वो न्यूज आ गई, उसके बाद भी लोग डिनायल मोड में रहते हैं, नहीं यार मैं लॉस में हूं, मैं काटूंगा ही नहीं। भैया जो आपके 100 रुपए अगर 70 रुपए हो गए हो, 70 से 50 भी हो जाएंगे, 50 से 30 भी हो जाएंगे, और हो सकता है कंपनी बिल्कुल जीरो हो गई। अभी रिसेंटली भी एक केस आया था, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाएगी। कटिंग योर लॉसेज ऑन टाइम इज अगेन अ वेरी वेरी यूजफुल आर्ट इन द मार्केट, राइट। ऐसा मत सोचिए कि भाई आपके लॉस में आपने लॉस बुक कर लिया है तो आप उस कैपिटल को, एक तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती कि भाई आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए जबरदस्ती उस इन्वेस्टमेंट जो कि आपका बहुत सारा फोकस और अटेंशन खींचती है उसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा, वो जो कैपिटल उसमें उलझी हुई है उसको आप कहीं अच्छी जगह नहीं लगा पा रहे हैं, राइट। तो हमेशा हमेशा बी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू बुकिंग योर लॉसेस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई जिस थॉट प्रोसेस से आपने इन्वेस्टमेंट करी थी दैट इज नो लॉन्गर वैलिड, भैया काटो, उसमें बी ब्रूटल। नुकसान कुछ नहीं है, उसको आप अच्छी जगह और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये नहीं कि भाई आप चर्निंग के नाम पे कुछ नहीं चल रहा है, आपने रीजन फाइंड आउट नहीं करी और बेच दिया, फिर दूसरे में डाला वो भी नहीं चल रहा है, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन we all have experienced or must be experiencing now also, right। तो उस फेज से सभी होके जाते हैं, इट्स नथिंग कि हमारे साथ कुछ अलग से हो रहा है। सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी ह्यूमन बिहेवियर या बाइसेस के शिकार हैं। बट अच्छा वही करते हैं जो उनसे अच्छे से डील करते हैं। और एक चीज जो आपने गलत कर दी और आपकी नॉलेज में आ गई है, तो एटलीस्ट इंश्योर करें कि भाई एटलीस्ट सेम मिस्टेक आप रिपीट ना करें। नई मिस्टेक्स के लिए तो मार्केट बनी हुई है। तो वाजपेयी जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ प्रेम जी, सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा। सर बताएं, क्या क्या लग रहा है मार्केट का, और आपको क्या लगता है मार्केट बिहेवियर क्या इंपॉर्टेंट है? उसके जी बाद फिर अपने ऑडियंस से हम सवाल वगैरह लेंगे। हाँ, तो प्रेम जी देखिए आपने काफी वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। और देखिए मैं ये बताऊं कि काफी लंबे समय से चूंकि मैं मार्केट में हूँ और कई प्रकार के उठा उठा पटक या ऊपर जाना नीचे आना, मतलब एक्सट्रीम राइज और एक्सट्रीम फॉल सभी को देखा है मैंने। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी रही जो बड़ी मतलब डार्लिंग भी थी मार्केट की, उसके बाद वो गायब भी हो गई, जीरो भी हो गई। तो जो आपने कहा ना मार्केट का बिहेवियर प्लस उसके साथ कंपनी का बिहेवियर, इन दो चीजों का बिहेवियर समझने के लिए थोड़ा सा हमको थारो स्टडी करने की जरूरत होती है। इस अपना जो हम लोगों ने ट्विटर पे स्पेसेस स्टार्ट किए, तो उसके पहले ही मैंने एक छोटा सा अपना चैनल बना करके यूट्यूब पर मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस थे टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, मैं हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल को कंबाइन करके ही देखने का प्रयास करता हूं। और जो भी लोग आते हैं अब हमारे आपके संपर्क में आए, मैंने सबको यही प्रयास किया है कि इन दोनों चीजों को कंबाइन करके देखा जाए। और अपना पैसा देखिए हमारा हार्ड अर्न मनी होता है। आरंभिक समय में जब हम लोग मतलब आज से 20-25 करीब 40 साल पहले, तो स्थिति ये थी कि कंपनी जब स्टार्ट होती थी तो उस समय कंपनी का कुछ नहीं होता था, मतलब जमीन ही केवल होती थी उसके पास। और उस समय उसका पब्लिक इशू आता था। उस समय भी एक स्टडी करके ही पैसा लगाने का प्रयास किया जाता था। हमने तो उस समय से मार्केट में एंटर किया और उसमें बहुत डिफिकल्ट होता था कि किस कंपनी में आप इनिशियल पब्लिक ऑफर में पैसा लगाएं, क्योंकि यद्यपि वो 10 रुपए का ही इशू होता था, माने आपके मिनिमम 1000 का ही 100 ही शेयर मिलते थे, लेकिन वो 1000 रुपए की भी इतनी कीमत मानी जाती थी कि शेयर लगाने के पहले उसके संबंध में काफी जानकारी करने का प्रयास किया जाता था और तब उसमें पब्लिक इशू में लगाया जाता था। उसमें भी कई बार स्टडी करने के बाद भी एक आध कंपनी आपकी जरूर थोड़ा सा लैगार्ड निकल जाती थी या कम रिटर्न देती थी, लेकिन ये अगर आपने 5 में लगाया तो आपको 1-2 कंपनी बड़ा अच्छा रिटर्न दे देती थी। और उनका फ्यूचर तो मालूम नहीं होता था, वो केवल अपना प्रोजेक्शन देती थी, बट उनके मैनेजमेंट को देख करके समझ के और फिर प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, मतलब वो एक बड़ी टफ टाइम होता था। क्योंकि चलती हुई कंपनी के बारे में तो आपके पास बहुत सारी चीजें रहती हैं और उनसे मिलती जुलती कंपनी को भी आप दे सकते हैं, बट एक नया आदमी कोई शुरू करता है तो उसके कैसी क्रेडिबिलिटी रहेगी, कैसा उसका नेचर रहेगा, ये पता करना बहुत मुश्किल होता था। बट उस समय से अब धीरे धीरे समय बदला और अब
पिछले 10 सालों में 15 सालों में तो मोस्टली रनिंग कंपनी आपकी आईपीओ लेके आती हैं, तो उनमें भी अधिकांश लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस एक दो कंपनियां ऐसी बीच में फंस जाती हैं जो अच्छा खासा नुकसान भी दे जाती हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जब हम देखिए स्टॉक मार्केट में इस 20 से लेकर के और 24 जो 2020 के बाद कोविड के बाद एक हम लोग जो भी हमारे साथी कर्मचारी प्राइवेट कंपनीज में थे, ऑफिसर भी थे, जिस भी पद पे थे, वो सब जब घर पे ही बैठे 3 महीने 4 महीने, उनको लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं था, फिर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ा। और मैं प्रिंस ये कहूंगा उस समय भी जब लॉकडाउन के समय मार्केट गिरी थी मार्च के महीने में, अप्रैल में जब चलनी शुरू हुई, तो किसी को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मार्केट इतनी क्यों चल गई। और 30 अप्रैल को जब मार्केट ने अपना वो बनाया था, एक तरह से अच्छा सा रिवर्सल दिया, तो वहां पे बहुत से लोगों ने अपने पोर्टफोलियो भी खाली कर दिए थे, और कुछ लोगों ने फिर मई में जाके 60 पोजीशन डेवलप करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये सबको पता था कि अगले 2 महीने में कोई काम ही नहीं हो रहा, 3 महीने में कोई काम नहीं हो, तो कंपनी को रिजल्ट खराब आएंगे। जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई 20 के बाद रिजल्ट आते गए, रिजल्ट खराब आते रहे और स्टॉक बढ़ते रहे। उसके पीछे रीजन ये थे कि अप्रैल मई में बहुत सारे प्रमोटर्स ने, चूंकि उनके पास कोई काम नहीं था, पैसा बचा हुआ था, तो उन लोगों ने मार्केट से स्टॉक अपने उठा लिए, अच्छा खासा अमाउंट लगाया उन लोगों ने। और बाकी दो तरह के विचार थे उस समय, कुछ लोगों का यह था कि भाई अब यहां लगाना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से उस समय जो मार्केट का बिहेवियर था वो बिल्कुल जो प्रेजेंट पोजीशन दिखाई पड़ रही थी हमको इकोनॉमी की या वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी की, उसके अगेंस्ट मार्केट बिहेव कर रहा था। तो वहां पर बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि क्या ये चलेगी, ये कब तक चलेगी, कहीं ना कहीं तो गिरेगी, कहां से चल पाएगी, भाई स्टॉक बढ़ रहे हैं, ये क्यों इतना बढ़ रहे हैं जब कंपनी चल ही नहीं रही, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। फिर जब जुलाई के बाद पार्शियल ओपन हुआ तो भी डिमांड की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे वो 2021 में और ज्यादा समस्या आई। 2021 में स्थिति ये थी कि जब अप्रैल में सेकेंड वेव आई तो उस समय तो बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, बट उसके बाद भी मार्केट ने कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं दिया। तो ये मार्केट का बिहेवियर जो है इतना आसान भी नहीं है हर एक को समझने के लिए, बट मैं इतना कहूंगा कि अगर मार्केट को आप थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि ये क्यों नहीं गिर रही है, और जब गिरनी शुरू होती है तो हमें उसे कहां पर आइडेंटिफाई करना है वो भी एक टेक्निकल से पता लगता है। अब रह गई बात कंपनीज की बात, जैसे कंपनियों में न्यूज आती है, अच्छी न्यूज आई या खराब न्यूज आई, अच्छी न्यूज पर अक्सर आपको स्टॉक 10% 15% ऊपर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो बहुत से लोग उसको कोशिश करते हैं कि हम इसको जाकर के वहीं पर उस पर सवारी करें, और अब इसमें नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन वो खबर क्या इतनी अच्छी है कि वो इसके पी को बढ़ा देगी, आने वाले समय उसकी ईपीएस बढ़ेगी क्या, सॉरी पी कह रहा हूं मैं, ईपीएस बढ़ेगी क्या उसकी, कितना उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको कूल ऑफ होने देना चाहिए। और जब वो हमेशा कूल ऑफ होगा, वो ऐसा नहीं कि वो एकदम से बढ़ गया तो नीचे आएगा ही नहीं। अगर 100 शेयर में 100 कंपनियों में न्यूज आएगी तो 4 6 8 कंपनी 10 कंपनी भले हो सकता है कि आपको वो निकल जाए ना मिले, लेकिन 90 कंपनी तो कूल ऑफ होंगी। इसके विपरीत एक कंपनी के संबंध में कोई न्यूज आती है, कहीं विदेश से उसका मान लिया कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया, या किसी कंपनी का कुछ माल वापस कर दिया किसी ने, किसी कंपनी ने कुछ रिकॉल कर लिया अपना, चाहे वो ऑटो से संबंधित हो चाहे मेडिसिन के संबंध में हो, या फिर जैसे यूएसएफडीए ने किसी फार्मा कंपनी पर जांच की और उसमें कमी पाई, तो उसके आधार पर वो गिरता है। तो वहां पर हमें उसका डीप स्टडी करनी चाहिए कि भाई ये जो आया है इससे इसका कितना पोर्शन का नुकसान होगा, कितने दिन का लेख, और जो आरोप है वो कितने गहरे हैं। तो इन सब के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। और साथ साथ उसका टेक्निकल भी देखना पड़ेगा कि भाई ये टेक्निकली क्या वीक हो गया, तो हम उसको वेट कर लेंगे, जब वो थोड़ा ठीक होगा तब उसमें रे एंटर कर लेंगे। या फिर अभी रिसेंट का सर एग्जांपल है जो आपने जी यूएसएफडीए की बात करी, तो लॉरस लैब्स में ही अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि कुछ न्यूज आर्टिकल के बेसिस पे ही सेबी ने उनसे पूछा था क्लैरिफिकेशन, तो उनकी मैनेजमेंट का भी रिसेंटली इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने बताया कि जिस यूनिट का ये बेसिकली इशू है उसका जो रेवेन्यू है वो हार्डली 1% जी कंट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल अगर उस पे कंपनी पे देखें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ना के बराबर है। मतलब ये कहने का पर्पज ऐसा नहीं है कि भाई इस कंपनी को अच्छा बता रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल जी के जी तौर पे है
कि उसका हाइप इतना बना दिया जाता है अनटिल अनलेस वी नो कि उसका इम्पैक्ट कितना है, जैसा कि आप बता रहे थे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। जी। तो चूंकि यूएस एफडीए को मैंने बहुत प्ले किया, मैं तो सही बताऊं आपको प्रिंस जी कि मेरा फार्मा सेक्टर पे बहुत फोकस रहा है। और चूंकि आपने फार्मा पे कई स्पेसेस किए शुरू में ही, जब जब उन लोगों ने पॉजिटिव भी दिया, चूंकि मेरा तो पॉजिटिव रहता ही था, जब उन लोगों ने पॉजिटिव भी देने शुरू किया तो मैं निश्चिंत हो गया। फिर मैं शायद कुछ स्पेसेस सुन भी नहीं पाया आपके। तो यूएस एफडीए तो हमको एक अपॉर्चुनिटी दिला देता है। जब यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन होगा, स्टॉक गिरेगा, गिरेगा तो भाई ठीक है, उसको गिर जाने दीजिए, उसको तुरंत मत परेशान होइए कि गिर गया तो हम तुरंत ले लें। उसे वेट करिए, जैसे ही उसका टेक्निकली फिर दोबारा ठीक होगा। देखिए वो सब चीजें एक हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगी, 10 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये जो इसका इंस्पेक्शन हुआ इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है। जैसे आपने बताया कि उनसे क्वेरी हुई, उन्होंने क्लेरिफिकेशन कर दिया, तो इसमें 2-3 दिन लगे होंगे, इस बीच में लॉरेंस लैब एक बार गिरा होगा। तो ये चीजें जो हैं ये कंटिन्यूअस होती है, ये आज से नहीं, मतलब हम तो 20 साल से कम 20 साल तो हो गए इसको देखते हुए। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्रमोटर का इथिकल होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जो बड़े हमारे सीनियर या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इथिकल में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मतलब इथिकल का मतलब 100% इथिकल होना चाहिए। बट ये बहुत डिफिकल्ट है एक आम इन्वेस्टर के लिए जान पाना कि वेदर इट इज एथिकल और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास हिस्टोरिकली कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें की हिस्टोरिकली ये प्रूवन रहता है कि यहाँ पर कोई इथिक्स के मामले में कोई समझौता नहीं होता है। तो आप उनको तो प्रायोरिटी पर रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो कंपनी ऑल ऑफ सडन, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा प्रिंस जी, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां, ये हाउसिंग फाइनेंस के लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले जो कंपनी आई वो एचडीएफसी थी, जिसने सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस स्टार्ट किया। फाइनेंस कंपनी तो थी लेकिन हाउसिंग फाइनेंस, केवल हाउसिंग फाइनेंस करने का काम एचडीएफसी ने स्टार्ट किया था। रिलायंस ने उसके बाद एक फाइनेंस कंपनी बनाई, फिर टाटा ने फाइनेंस कंपनी बनाई, बजाज ने फाइनेंस कंपनी बनाई, इन सब ने फाइनेंस कंपनी बनाई। शुरुआत जो हुई एचडीएफसी से हुई। अब एचडीएफसी के इतिहास में कोई जाएगा तो वो कब से स्टार्ट हुआ आप देखिए। और उनका एक काम करने का ऐसा ढंग था कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से करते थे। लोन देने में कहीं किसी प्रकार का कोई, मतलब किसी प्रकार की कोई सोर्स नहीं, सिफारिश नहीं। और चूंकि हाउसिंग में देते थे तो हाउसिंग हमारे इंडिया का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एनपीए टेम्परेरी तो हो सकता है बट परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी मकान बनाने के लिए पैसा लोन लेता है तो वो मतलब मोर देन 50% वो अपना लगाता है पैसा। जमीन पहले खरीद लेता है, फिर उसके बाद उसको लोन मिलता है। तो वो ऐसा है कि पर्पजली, मतलब कोई प्रॉब्लम उसको हो गई तो फॉर द टाइम भी हो सकता है कि वो कुछ डिफॉल्ट कर जाए, बट ऐसा नहीं कि वो पूरा पैसा लेके बैठ जाए, क्योंकि बिजनेस तो कर नहीं रहा है वो कोई ना कोई उसका घर वाला, कोई परिवार वाला, किसी की डेथ हो गई है तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे या तो वो किसी को सेल ऑफ करेंगे या कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आप एचडीएफसी को देखिए तो कंटिन्यूएशन में वो अपग्रेड ऊपर होती रही। एचडीएफसी बैंक का जब इशू आया था तो लोग इसमें शेयर लगाने में तो तैयार नहीं थे। 95 में बहुत कम लोग लगाने को तैयार थे। हालांकि ये मैं नहीं कहूंगा कि वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ था, सब्सक्राइब तो हुआ था, मोर देन 1 टाइम भी हुआ होगा, मतलब 8-10 टाइम हुआ होगा। बट उतना उत्साह नहीं था लोगों का बैंकों के ऊपर कि भाई हम एचडीएफसी बैंक पे लगा दें। लेकिन उन लोगों ने अपना धीरे धीरे प्रूव किया, उनके मैनेजमेंट ने, और वो प्रूव होते होते आप आगे बढ़ते चले गए। अब आती है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, एलआईसी ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाई। उधर आपकी डीएचएफएल थी, जिसको दीवान हाउसिंग फाइनेंस, दीवान ग्रुप हुआ करता था, उनकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। अगर 2000 के उसमें जाएंगे आप लोग तो ये दोनों कंपनियां पैरेलल की तरह से हाउसिंग की बनी थी। और दीवान हाउसिंग हमेशा एलआईसी से नीचे ही रहती थी। एलआईसी हाउसिंग के पास तो चूंकि एलआईसी का अपना पैसा भी होता तो वहीं से उनको फंडिंग मिल गई, कुछ और भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब हाउसिंग का बूम चला 2003-4 के बाद, जब इन कंपनियों में राइज होना शुरू हुआ तो एलआईसी का शेयर भी बढ़ा। एचडीएफसी का तो खैर चलो उसके बारे में नहीं कुछ कहेंगे, वो तो बढ़ ही रहा था, वो तो काफी पहले से आ गया था। और दीवान हाउसिंग बढ़ा। अब आप ये देखिए कि दीवान हाउसिंग ने एक समय एलआईसी हाउसिंग को सरपास कर। अब यहां पर सोचने वाली बात यह थी कि भाई आखिर दीवान हाउसिंग के पास ऐसा क्या है। मैंने उस समय जब ये दीवान हाउसिंग इसको सरपास कर गया, मैं जो भी हमारे संपर्क में रहता था मैं हर एक को दीवान हाउसिंग से डिस्करेज करता था।
और आप ये देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दीवान हाउसिंग डिफॉल्ट कर गई। अब जब किसी कंपनी के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में कोई ऐसी ऐसी खबर आती है कि उसने फंड को डिसाइफन किया, फंड को कहीं ऐसी जगह पर लगाया जो बिजनेस से इतर है, तो आप ये समझिए वो खबर, उस खबर को हमें सीरियसली लेना है, चाहे वो भले झूठी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसमें जाकर के नहीं कूदना है। क्योंकि सत्यम के साथ यही हुआ, देन दीवान हाउसिंग फाइनेंस हुआ, यस बैंक में भी यही हुआ। तो ये जो खबरें हैं, ये खबरें कंपनी को बिल्कुल गर्त में लेके चली जाती है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने पैसे को डिसाइफन कर दिया है तो उसकी रिकवरी किया जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो तभी खुलता भी तब है जब उसका उस पर्टिकुलर दूसरे सेक्टर में नुकसान होने लगता है। अब वो यहाँ मैनेजमेंट कितने दिन तक उसको मैनेज करेगा, तो करते करते 1 साल 2 साल 3 साल कोई ना कोई आइटर ऐसा आ जाता है जो उसको मानने को तैयार नहीं होगा, और जिस भी आइटर ने उस पर विरोध कर दिया या ओपन कर दिया, तो आप समझिए वो बात पब्लिक में आई जाती है डोमेन में, और फिर वो कंपनी के लिए खराब होती है। तो जब भी मैनेजमेंट की इथिक्स के संबंध में कोई प्रश्न आता है, अब हालांकि इसी क्रम में मैं 1-2 कंपनियों के और भी नाम लूंगा, जैसे सन फार्मा के लिए एक बार एक इथिक्स का क्वेश्चन आया, एक बार इन्फोसिस पर भी आया, एक बार आपका यूपीएल पर भी आया। ये 3-4 कंपनियों पर भी एक बार 2-3 बार ऐसे से आया कि साहब ये लोग मैनेज करते हैं अपने स्टॉक प्राइस को। तो स्टॉक प्राइस की रिगिंग करने का अभी रिसेंटली जो उदाहरण है, लास्ट ईयर आया था, अडानी ग्रुप पे आया था। वहां पर हमको ये देखना है कि जो आरोप कर लगाने वाला व्यक्ति है, क्या उसके पास कोई बहुत अच्छे साक्ष्य हैं। अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं तो वो बिल्कुल क्या होगा कि वो शिकायत तो कर दी किसी ने भी, क्योंकि विसिल ब्लोअर है, उससे बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं मांगी जाती, उसने दे दिया, और कहीं जरा सी भी पूछताछ शुरू हुई तो उसका तुरंत निगेटिव इंपैक्ट मार्केट में स्टॉक पर पड़ जाता है। बट क्या क्या जितना उसने बताया उस प्राइस रिगिंग से ऐसा लगता है कि क्या मैनेजमेंट ने कुछ पैसा कमा लिया होगा, मैनेजमेंट का ऐसा उद्देश्य था? तो मैं समझता हूं कि आपको उसकी पुरानी वर्किंग से, उसके रिजल्ट से एक अनुमान लग जाएगा कि ये आरोप कितने सही हैं। तो ऐसे आरोपों पर बहुत विश्वास करने के पहले हमें जो है थोड़ा सा स्टडी करनी से। इन्फोसिस में भी एक बार ऐसे हुआ था, वो सीधा 20% गिरा था, 20% का सर्किट लग गया था उसमें। उस पर एक इन्हीं के कर्मचारी ने आरोप लगा दिया था कि साहब ये तो जो है अपना रिजल्ट मतलब बढ़ा के दिखाते हैं, अच्छे दिखाने के लिए ये मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के लिए बताया था कि एडजस्टमेंट करते हैं। अब वो चूंकि नौकरी करता था, नौकरी से निकाल दिया गया होगा या उसने छोड़ दी होगी, जो भी रीजन रहा होगा, उसने वहां पर आपके यूएस में भी शिकायत करी, यहाँ सेबी को भी शिकायत करी, और अगले दिन वो सर्किट लग गया। बट जबकि मैं समझता हूं, जब से मैं इन लोगों की कंपनी मतलब इन्फोसिस वगैरह की गाइडेंसेस सुन रहा हूं, 2000 के आसपास जब ये बिल्कुल पीक पर चल रहे थे, उस समय भी ये लोग अपनी गाइडेंस को खराब दिया करते थे। ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ, उस समय भी ये कहते थे कि अगले क्वार्टर हमारा अच्छा नहीं होगा। तो अगर जब जो कंपनी 2001-2 में भी कहती थी कि भाई हमारा अगला क्वार्टर ठीक नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो मैनेज करने के लिए इस तरह की चीजें करेगी। लेकिन शिकायत हुई और उसका परिणाम वो गिरा, और 2-3 महीने गिरा रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें रिकवरी आई, और रिकवरी आके फिर वो नया हाई भी बनाया, और आज तो सभी लोग देख रहे हैं 700। ये घटना उस समय की जब 770 के आसपास था तब हुआ था। तो ये इस प्रकार जो भी खबरें होती हैं, फिर मैं इसी समय जब मैं स्पेसेस में जब से ज्वाइन किया तब की भी खबर बता देता हूं आपको। हर खबर का एक अलग तरह से एनालिसिस होता है, और उस एनालिसिस के लिए आप स्वयं भी पढ़िए और सुनिए भी सब लोगों को। भाई 10 लोग बताएंगे तो 10 लोगों की बात सुनने के बाद में आपको एक अनुमान लगेगा कि यार ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हर एक का सोचने का नजरिया, समझने का अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। अब जैसे बजाज बजाज हिंदुस्तान की मैं बात बताता हूँ। बजाज हिंदुस्तान घाटे में चल रही कंपनी, बहुत दिनों से घाटे में चल रही थी। शुगर सेक्टर की कंपनी है, यूपी की सबसे बड़ी कंपनी थी, सब बातें थी, बट उसके बावजूद वो उसका शेयर 20 रुपए 22 रुपए ऐसे ही घूम रहा था। ऑल ऑफ सडन उसकी एक खबर आती है कि साहब इसके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनसीएलटी में चला गया। जैसे ही वो खबर आई, उस पर 20% का सर्किट लगा नीचे का, 20% का लग गया, तो स्वाभाविक सी बात वहां कोई ट्रेड नहीं हुआ। अगले दिन फिर 20% लग गया, तो मतलब 18 रुपए के आसपास था भाव। 3-4-5 दिनों में वो धीरे धीरे 10 रुपए के नीचे पहुंच गया, 9, 8:30, 9 के बीच में ट्रेड होने लगा। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 8 रुपए 9 रुपए के शेयर सामान्य क्रम में मैं भी नहीं देखता, ना मैं उनके बारे में बात करता हूं। बट इसमें हमने क्यों बात करी, क्योंकि एक सेक्टर था जिस सेक्टर पर स्पेशली
उस समय प्रधानमंत्री जी ने इसको मतलब बूस्टअप करने के लिए एक पॉलिसी मैटर में भी चेंज करने का प्रयास किया था, प्रयास या चेंज ही किया था। तो उसकी वजह से मेरा इस सेक्टर पर ज्यादा फोकस था। अब ये घटना जब हुई कि एसबीआई ने कहा कि साहब हमको इसको एनसीएलटी में ले गए, तो जिसमें 18 रुपए से वो 9 रुपए आ गया, मतलब 50% घट गया वो। तो मैंने ये बात सबके सामने रखी थी कि देखिए एनसीएलटी में स्टेट किया गया है और इसमें क्या होगा। एनसीएलटी में जाने का रीजन ये है कि इसने डिफॉल्ट किया होगा, इसने, लेकिन डिफॉल्ट ऐसा नहीं कि वो परमानेंट डिफॉल्ट करेगा कि उसे पैसे नहीं देना है, ना कंपनी बंद होने वाली, क्योंकि चीनी मिल नई बहुत ज्यादा लग नहीं रही है, पुरानी जो चल रही है उनको गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि कोई प्राइवेट चीनी मिल बंद हो, क्योंकि बंद होगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी, और वो एक जब पैदा किसी किसान गवर्नमेंट के लिए भी सरदर्द होता है, तो गवर्नमेंट ये चाहेगी वो चलती रहे। अब वो लोन पे मान लिया इंटरेस्ट नहीं टाइम से पे हुआ तो वो डिफॉल्ट कर गया, एनपीए में चला गया, तो उनके सामने एक मजबूरी कि उनको जाना ही है। और हमने ये भी कहा, उसी समय मैंने कहा था कि ये लोन रिपे हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर, और उसके बाद ये एनसीएलटी से विड्रॉ हो जाएगा। हो सकता है कि और लोगों ने भी अपने वीडियो डाले हो यूट्यूब पर, हो सकता है कि उन लोगों ने भी मतलब इस पर कुछ न किसी ने अपनी एनालिसिस की होगी, मैंने सुनी नहीं किसी की, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस पर कंफर्म था, तो मैंने वो बातें रखी भी थी। और अगर हमने किया कि नहीं किया उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। निश्चित रूप से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको ग्रैब करने का प्रयास करता हूं, और जो भी हमसे संपर्क में बहुत डायरेक्ट थे उनसे तो मैंने जरूर कहा था कि इसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये घटना जो भी है 3-4 महीने के अंदर ही सुलझ जाएगी। जिस दिन जब चीनी मिलों को स्टार्ट होना होगा तो ये स्टार्ट तो होगी ही। और आप ये समझिए अगस्त की घटना थी ये, और दिसंबर में फिर उसमें उन्होंने लोन रिपे कर दिया, उसका गवर्नमेंट के पास पैसा बकाया था, गवर्नमेंट से उसे पैसा मिल गया इलेक्ट्रिसिटी का, और उसने बैंक में जमा कर दिया। फाइनल होते होते टाइम थोड़ा लगा, पैसा जमा करने के बाद लिखा पढ़ी होते हुए लगभग 8-10 महीने के बाद ये खबर आई कि एनसीएलटी से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और वो 10 रुपए से फिर से 20 रुपए हुआ, और 20 रुपए से फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर तो बहुत से लोगों के रडार पे भी आया। अब जब 40 रुपए आया तो बहुत से लोगों के रडार पे आ गया, तो वहां पर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, और जो लोग हमसे थोड़ा संपर्क में थे मैंने वहां पर ये कहा कि भैया 50-40 रुपए के आसपास यहाँ एक बड़ा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर एंट्री करने से बेहतर है कि आप रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये सब एग्जाम्पल केवल मैं इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी घटनाएं बीच बीच में आती रहती हैं। अब पॉलीकैब में हुआ, पॉलीकैब की घटना जो बहुत ताजी घटना, मैं वो बताना चाहूंगा। पॉलीकैब के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई, तो इनकम टैक्स वालों ने जब जांच करने के बाद जो भी कंक्लूजन दिया, जिस दिन रेड हुई उस दिन पहले गिरना शुरू हुआ शेयर। उसके बाद जब उन्होंने अपनी कंक्लूजन रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट प्रेस में रिलीज किया कि साहब इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का सेल छिपाई है, और साथ में एक एलिगेशन ये था कि इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैश पेमेंट करवाया इनको, कुछ लोगों के दिया गया था कि इनके यहाँ इन्होंने पेमेंट किया था, और उसी के साथ उसी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जांच भी हुई थी। अब आप देखिए जिस दिन ये खबर आई कि 1000 करोड़ का इन्होंने वो किया है, 1000 करोड़ की सेल छिपाई है, उसी दिन उसमें नीचे का सर्किट लगा 20% का, और उसके बाद वो टोटल मिला के शायद 30-35% घट गया था, ऑलमोस्ट 3800 रुपए तक आ गया था, 5600 रुपए के आसपास उसकी जांच होनी शुरू हुई थी। तो अब उस पर मेरा अपना ये व्यू था कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 करोड़ की सेल अगर इवेजन पकड़ी गई है, हालांकि देखिए गवर्नमेंट के रूल्स बहुत टाइट होते हैं, पेनाल्टी प्रोसीजर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, बट मेरा अपना ये मानना है कि गवर्नमेंट टैक्स इवेजन को जब पकड़ती है तो टैक्स रियलाइज करना, उस पर जो भी पेनाल्टी है रीजनेबल पेनाल्टी लेकर के, कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि एक कोई पर्टिकुलर कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि उससे अदरवाइज तो टैक्स आ ही रहा है। तो मेरा ये मानना था कि अगर 1000 करोड़ की अगर इसने सेल छिपाई है तो ये 1000 करोड़ की सेल तो एटलीस्ट इसकी सेल में ऐड हो जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर से, क्योंकि उतनी सेल तो उसकी हो रही थी। अब ये सोचने का नजरिया होता है हर एक का। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे मैंने ये बात जो भी हमारे क्लोज सर्किल में थे उनको बताया मैंने कि देखिए ये हमें बहुत खराब नहीं लगती है न्यूज, क्योंकि अगर ये सेल है इसकी तो सेल बढ़ेगी। ठीक है, वो कैश में सेल कर रहा था या मतलब आउट ऑफ बुक कर रहा था तो सेल से उसे प्रॉफिट तो हो ही रहा था, वो प्रॉफिट बुक्स में नहीं आ रहा था। अब ये बुक्स में आना शुरू हो जाएगा। और जब मैंने उसका और थोड़ा सा डीप में स्टडी की तो मैंने ये देखा 65% उसकी सेल तो कारपोरेट्स को थी,
जब जो आदमी 65% की सेल कारपोरेट को करेगा, तो आप ये समझिए कि वो कितना परसेंट जो है वो कैश में कर पाया। कारपोरेट तो कोई नहीं लेगा कैश में। और वहीं पर मैंने सब लोगों से यही कहा था कि यहाँ पर अगर जब भी, हाँ, वहां मैंने टेक्निकल पॉइंट एक डिस्कस किया कि जब कभी ये वीकली पिवोट से ऊपर बंद होना हो या किसी भी एक वीक के हाई को तोड़ के ऊपर बंद होगा, वहां पर हमें इसमें एंट्री करनी होगी। और अगले 6 महीने में, मेरा 6 महीने का मानना था, बट खैर फॉर्चुनेटली वो 6 महीने से कम में ही उसने नया हाई बना दिया। तो इसी प्रकार से श्री सीमेंट में हुआ था, उसमें भी यही हुआ। रेट के समय वो गिरा, गिरने के बाद फिर उसने दोबारा नया हाई बनाया। तो गवर्नमेंट का जो भी जांच होती है, कार्रवाई होती है, उसको भी हमें थोड़ा सा थारो स्टडी करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जांच में ऐसा ही होगा। हो सकता है कोई ऐसी जांच हो जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स हो और वो उसको बंद करने की स्थिति में पहुंच जाए। कोई ऐसा टैक्सेशन गवर्नमेंट के यहाँ से कोई प्रोविजन चेंज हो जाए जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो। जैसे कि अभी हम लोग एक स्टॉक में देख रहे हैं जो गोवा बेस्ड कंपनी है। तो ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, बट नॉर्मली जो जांच होती है उसमें जो इवेजन्स वगैरह निकलते हैं, जिसके आधार पर जब मार्केट एक ओवर रिएक्ट करती है, मैं समझता हूँ ये ओवर रिएक्शन है। इससे इससे ज्यादा मतलब इतना बड़ा रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। अरे भाई, किसी कंपनी ने सेल्स किया, इसी तरह से उसमें हुआ था आपका सेमारू एंटरटेनमेंट में। सेमारू एंटरटेनमेंट में जांच हुई, इसमें जो भी खबर आई वो सीधे 30-40% गिरा, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसने फिर नया हाई बना दिया। तो ये जो न्यूज है आती हैं, इन न्यूज के आधार पर जब भी फॉल होगा, अच्छा ये तो फॉल की बात मैं ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि आपको ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, फॉल पे ही मिलेगी। बट इमीडिएटली हमें नहीं वहां पर घुस जाना है, उसको हमें थोड़ा एनालाइज करना है। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपना व्यू डालेंगे, कुछ पॉजिटिव डालेंगे, कुछ निगेटिव डालेंगे। आप सबके व्यू को पढ़िए और फिर उसको कंक्लूड करिए। जब 10 लोगों का व्यू आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इसमें से 6 लोग क्या कहते हैं, 7 लोग क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप उससे भी कुछ व्यू बना लेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया कोई ऐसा अर्निंग का साधन नहीं है किसी के लिए। बट जैसे अब मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्रिंस जी ने स्टार्ट किया, मैं भी आ गया, बात कर लिया, तो एक क्या है कि सोशल हमारा एक कंटेंट बन जाता है। आपस में दूसरे से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, कुछ चीजें हमको किसी और से सुनने मिलती, कुछ हमारी चीजें औरों के पास पहुंच जाती। तो एक जैसे कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में जुड़ने का, जुड़े रहने का, औरों को जोड़ने का एक एक स्वभाव होता है मनुष्य का। तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर ऐड होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये मत सोचिए कि भाई ये इतना ज्ञान बताने की क्या जरूरत है, चीजें बताने की क्या जरूरत है, क्या मिल रहा है आपको, फायदा क्या हो रहा है। फायदा कुछ नहीं होता है, बट ये होता है कि कुछ लोगों का जो भ्रम है अगर दूर हो जाएगा तो शायद शायद हम समाज के लिए 0.0001% कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। ये एक मन में विचार रहता है, और हमको भी कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए कहीं से, ऐसा भी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि सब कुछ मैं नहीं जानता हूं, कुछ ना कुछ और भी हमारे साथ लोग ऐसे होंगे जो हमसे ज्यादा जानते होंगे, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, पर्टिकुलर एरिया पे हमें जानकारी ना हो, तो हम उनसे भी कुछ सीख लेंगे। तो सीखने और सिखाने की एक जो परंपरा यहाँ पर रहती है, वो फ्री ऑफ कास्ट और विदाउट एनी इंटरेस्ट रहती है। बट अगर हम करेंगे नहीं तो हमें ना कोई जानने का, ना हम किसी और को जान पाएंगे। तो इसलिए हम लोग आपस में मिलते रहते हैं और बात करते रहते हैं। अब प्रिंस जी, जो आपने मार्केट के संबंध में बात करी, तो अभी सैटरडे वाले स्पेस में आप आए थे, बट मुझे लगता है कुछ शायद टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उस दिन दिल्ली में और हरियाणा में चुनाव था, आपको याद होगा। तो उसकी वजह से कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी। उस दिन मैंने बहुत डिटेल में क्लियर कट लेबल शेयर किए थे, और हमने ये कहा था कि ये वीक जो है, 4 दिन का जो ये टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए। और हमने सभी लोगों से कहा था, जो लोग हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए थे, कि भाई देखिए, हम वैसे आपको वीकली पिवोट की थ्योरी पे ले जाते हैं, वीकली पिवोट थ्योरी की पर डिटेल में बात भी करते हैं, मंथली की भी बात करते हैं, बट ये जो 4 दिन है ये हमारे लिए डेली पिवोट का को वॉच करने के रहेंगे। और प्रिंस जी, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात वैसे हो जाएगी कहने वाली, लेकिन मैं बड़ी बात की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने मंगलवार को सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पर निफ्टी का लेवल शेयर किया, और साथ में मैंने ये भी लिखा कि इनिशियल बायस बेरिश है। देन वेडनेसडे को भी मैंने लिखा कि इनिशियल बायस बेरिश है, और वेडनेसडे को भी गिरी मार्केट, आज भी गिरी। क्योंकि आज वाले में कंफर्म था कि भाई ये तो वीकली प्योर कल उसने ब्रेक करी है, डेली का S2 टूटा, मतलब लेवल टूटे हैं पिछले दिन के, तो वो नीचे ही जाएगी, और आज भी वो नीचे गई। तो अब
एक व्यू पीछे पिछले हफ्ते में बना था ऊपर जाने का, ऊपर का भी हो गया, अब नीचे का भी आज क्लियरिंग भी हो गई। तो अब 2 दिन हमारे पास प्री इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके पहले के 2 ट्रेडिंग सेशन है और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो मैं समझता हूँ इस समय अभी हम कोई भी बताएंगे तो उसका पता नहीं रिजल्ट क्या, कैसे इम्पैक्ट रिजल्ट क्या आएगा क्या, और मार्केट उसे कैसे लेगी। तो मैं खाली इतना ही कहूंगा कि ये 2 दिन अगर हम थोड़े धैर्य से निकालें ज्यादा अच्छा रहेगा, और रिजल्ट आने के बाद काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। फिर हम अपने टेक्निकल के बेस पर या जैसे भी निकलता है उन चीजों को हम शेयर करते ही रहते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा उसको बताने के लिए। थोड़ा सा अभी प्री मैच्योर रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरत के चलिए। अगर आपको लगाना है पैसा, फिर मैं फिर कहता हूं कि आपको 100 रुपए लगाने हैं तो आप 20 रुपए लगा सकते हैं, 25 रुपए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने 100% लगा दिया और कोई थोड़ा सा भी नीजक रिएक्शन आया तो आपके पास फिर मतलब कुछ और मौका जो होगा वो उसको यूज करने के लिए पैसा नहीं होगा। और जब ज्यादा पैसा लगाया था तो माइंड भी थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, काम करने का मन नहीं करता, यार हमने 2 ही दिन में इतना नुकसान कर दिया। लेकिन इतना आप जान के चलिए कि मतलब जो अपनी इकोनॉमी की पोजीशन है, जिस तरह से गवर्नमेंट्स ने पीछे सब चीजें चेंज की हैं, चल रहा, तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा गिरावट कोई आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं पिछले हफ्ते से 2 हफ्तों में मैंने लगातार इस बात को शेयर किया कि मार्केट में ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। बट जब रिजल्ट में अगर कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा हमें नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये 2 दिन ऐसे का हमें निकाल लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट फिलहाल ओवरऑल बुलिश है, लॉन्ग टर्म मतलब वीकली चार्ट हो चाहे मंथली चार्ट हो, सब पे बुलिश थी। बट ये जो करेक्शंस हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर, ये होंगे, होते रहेंगे। मेरी जो थ्योरी है मंथली पीरियड की, उसके बेसिस पे मैंने लास्ट वीक में भी ये बात कही थी कि जब हम मंथली सपोर्ट 1 तक जाते हैं और वहां से रिवर्सल होता है तो रेजिस्टेंस 1 जो मंथली का होता है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है, और वही हुआ। मंथली रेजिस्टेंस 1 एक 22,999 पर था और 23,110 से हमारा रिवर्सल हुआ। और मंडे को हमने हाई पे नहीं क्लोज किया, मंडे को हम पिवट के पास क्लोज हुए। इसीलिए हमने ट्यूसडे को जो शेयर किया था, मैंने बेरिश व्यू शेयर किया, और वेडनेसडे को भी बेरिश व्यू शेयर किया था। अभी वो बेरिश है, बट आज चूंकि फाइनल क्लियरिंग हो गई है मंथली, तो कल से फिर नया महीना स्टार्ट होगा, नई सीरीज स्टार्ट होगी, देखते हैं ओपनिंग कैसी होती है। और ये 2 दिनों के लिए मैं थोड़ा सा इंटरस्टेन करूंगा, और डेली पिवट में शेयर ही करता हूं। तो उसके बेसिस पे अगर किसी को भी देखना है तो अगर पिवट के ऊपर जब भी होगा तो उसका बुलिश फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और पिवट के नीचे रहेगा तब तक हम एक बेरिश व्यू रखेंगे, या उससे हम दूर रहेंगे, या फिर बेरिश हमको ट्रांजेक्शन करना होगा। जी वाजपेयी जी।